Hi everybody, so in this video we are going to talk about Google search generative experience. Basically how it is different from results that are generated in featured snippets. So when Google uses AI to generate the content for users in the Google search results, that is what is called Google generative experience. And it is quite different from featured snippets. We will talk about it, but first have a look at this video. Better for a family with kids under 3 and a dog, Bryce Canyon or Arches. Now, search does the heavy lifting for you. What you see here looks pretty different, so let me first give you a quick tour. You'll notice a new integrated search results page, so you can get even more out of a single search. चलो इसको ट्राई करते हैं. आपको labs.google पे जाना है. उसके बाद ये वो वेबसाइट है जहाँ पे गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए हुए हैं आपको सब यहाँ पे दिख जाएंगे. सो ऑन राइट हैंड साइड यू कैन सी HSGE. तो इसको हम ट्राई करेंगे. अभी तक ये एक्सपेरिमेंट फेज में था बट नाउ इट्स रोलिंग आउट. सो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को टर्न ऑन करना है एंड दैट्स हाउ यूल स्टार्ट यूजिंग द जनरेटिव एक्सपीरियंस. ओके, सो ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा है. That is how the results are going to show up. Yes, show more. That is how it is going to look. And if you want to ask a follow-up question, you can do that. So you see there's a lot of content here. Okay. Another example we are taking car mileage का. तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखने वाला है and there's a lot of content. It's quite confusing. Ask a follow-up if you want to ask a follow-up question. So not bad. मैं ChatGPT काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ and I use other tools as well. With particularly this, my experience has not been good. क्योंकि आपको इतना ये उलझा के रख देता है ना, it's kind of complex. और कुछ queries के लिए results भी ठीक नहीं थे. So मेरा personal experience, I'm not liking it. And I would say with placements they have done a good job क्योंकि ads अभी इतना वो show नहीं कर रहे हैं and they are not annoying. They are keeping in mind कि users को annoy नहीं करना है. Even if they do it, they'll do it in a way that doesn't look obvious. चलो कुछ हम भी सर्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल सर्च दिस हाउ टू क्लियर जर्नल स्टडीज़ पेपर in UPSC. Okay, let's see. तो ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे. कैन यू सी दैट जनरेट. सो इट्स अ गुड थिंग कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये नहीं है बिकॉज दे आर स्टिल ट्राइंग कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होता है. तो अभी तक तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है. इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. वी नीड अ गुड क्वालिटी आंसर और वो हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहेगा इसमें. इतने सारे ऑप्शंस दे दिए दैट डजंट मीन कि क्वेरी सॉल्व हो जाएगी यूज़र की, राइट. सो या पैराडॉक्स ऑफ चॉइस वुड बी द प्रॉब्लम. एंड इफ़ यू सी हियर कि ठीक है ब्लॉग पोस्ट से ये उठा के दे रहा है बट इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये स्ट्रक्चर कंटेंट का काफ़ी क्लियर होता है. जो भी SGE में आ रहे हैं, SGE रिजल्ट्स में आ रही हैं वेबसाइट्स, उनके ब्लॉग पोस्ट अगर आप उठा के देखोगे तो कंटेंट स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है. आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन नाउ सिंस AI has also come into the picture, but I would say that the results that are shown by Google search experience, it's still slower. We'll also have to buck up and change our SEO strategy. So if you want to increase the chances of your website getting ranked on first page of Google, what exactly you have to do? First of all, see, you have to focus on topics that require extensive info. For example, जैसे quick tips for home gardening. This is a very simple query by a user. It's very simple. It doesn't require extensive info. They're just looking for the tips, quick tips. Another keyword is artificial intelligence in healthcare. Now, there is no one right answer, right? The user would require to do the extensive research about this topic. So, you understand the choice of keywords would make the difference. Second tip is to create lots of backlinks, quality backlinks. इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि अभी पता है कंटेंट मार्केटिंग से थोड़ा मुश्किल होने वाला है गेम. विल नॉट बी एबल टू अचीव दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स. तो बैकलिंक्स क्रिएट करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एज EEAT सेज, यू हैव टू इंक्रीज द ट्रस्ट वर्दिनेस, यू हैव टू इंक्रीज द रेलिवेंस ऑफ योर कॉन्टेंट. सो एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है गूगल एल्गोरिथम में. आपने देखा होगा काफ़ी लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि यू नो वेबसाइट्स हु हैव ओल्डर डोमेन्स एंड हु हैव लाइक रियली गुड अथॉरिटी, गुड DR, दे आर ओनली रैंक. एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो बिकॉज ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं एल्गोरिथम के साथ एंड लूप होल्स भी हमेशा आएंगे. बट वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन डू आवर बेस्ट, राइट. सो एटलीस्ट इतना तो करो. बात की बाद में देखी जाएगी. इतना तो करो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग दिस ऑल्सो. सो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं आपको और आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है. थर्ड टिप वुड बी टू क्रिएट एग्जैक्ट मैच ब्लॉग पोस्ट. अब जो यूज़र की क्वेरी है वही आपके ब्लॉग पोस्ट का टाइटल होगा.
एग्जैक्ट अगर वो मैच हो जाएगा तो भी आपकी जो रैंकिंग पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी और SGA में आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज स्किमेबिलिटी। अब स्किमेबिलिटी क्या होता है कि जैसे कोई आपका यूज़र आपका कंटेंट पढ़ रहा है तो वर्ड टू वर्ड वो नहीं पढ़ना चाहता, सो इफ़ दैट पर्सन वांट्स टू स्किप तो उसको समझ में आना चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बीच में कहीं से पढ़ रहा है और उसको दोबारा से फिर देखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो इतना मेस्ड अप है। सो कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस यूज़ करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करिए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करिए, टेबल ऑफ कंटेंट को ज़रूर डालो अपने ब्लॉग पोस्ट में और आपकी जो हेडिंग्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया विल रूल पर्सनल ब्रांडिंग। आपको सोशल मीडिया पे अपनी जो ब्रांडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तभी काफ़ी सारे लोग आप देख रहे होगे यूट्यूब पे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो बीइंग लाइक वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब। दैट्स द मेन रीज़न, बिकॉज आई नो आगे आगे जो चीज़ें हैं वो टफ होती जाएंगी, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो जाएगा, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्टिंग, बिकॉज जितना स्पेस बनता जाएगा उतनी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती जाएंगी। देन कम्स बिल्ड एक्सटर्नल लिंक्स फॉर रेलेवेंस। जैसे आप बैकलिंक्स बनाए थे, इंटरनल लिंक्स जैसे क्रिएट करेंगे उतने ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल लिंक्स भी हैं। अगर आपको लग रहा है आपके ब्लॉग पोस्ट में आपको किसी को लिंक देना है, कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट है जो काफ़ी अच्छा, तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हो। द राइट रेशियो ऑफ क्रिएटिंग एक्सटर्नल लिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट्स अपडेट योर कंटेंट एंड गेट इट इंडेक्स्ड इन कंसोल। अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे हमारे पास तो इतने सारे ब्लॉग पोस्ट हैं, तो आप राइटर्स अपने कंटेंट राइटर को बोलिए अपडेट करिए उन ब्लॉग पोस्ट को। अगर आपको SGE में रैंक करना है, उस तरीके का कंटेंट बनाइए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसको फिर इंडेक्स ज़रूर कराइए गूगल सर्च कंसोल में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन एड्स आफ्टर अ वाइल। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो मैं इसी चैनल पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव गुड एक्सपीरियंस विद यूट्यूब एड्स। रीजन बीइंग, जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स टाइम। हम अपने क्लाइंट को भी ये बात बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोसेस होता है, ऑर्गेनिक ब्रांडिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो टाइम लगता है उसमें। इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ये चीज़ बहुत समझाने में टाइम लगता है। जो लोग आपको क्विक स्किम बेचते हैं ना कि 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में इतना हो जाएगा, आफ्टर देन व्हाट, आप सर्विसेज लेना बंद कर दोगे, आप कंटेंट लिखना बंद कर दोगे, तो प्रोसेस वहीं खत्म, योर वेबसाइट वुड बी डेड। करना क्या है, क्रिएट ऑर्गेनिक कंटेंट फॉर सम टाइम, डू नॉट रन एड्स। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज। आप थोड़े टाइम के लिए एड्स को स्किप करिए और कंटेंट बनाते रहिए, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करिए। एंड अनदर थिंग, आप अपनी ऑडियंस भी बिल्ड कर पाओगे ऑर्गेनिकली, क्योंकि जो लोग वैसे भी एड्स से आते हैं दे डोंट शो एनी इंटरेस्ट और दे डोंट इवन सी योर कंटेंट। तो पुश वाली जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा ही स्लो रहती है। सो थोड़े टाइम के लिए आई वुड से ऑर्गेनिकली करो उसे और उसके बाद आप एड्स रन करना स्टार्ट कर सकते हो, दैट टू वेरी स्लोली। द लास्ट स्टेप इज टू फिक्स द वेबसाइट लोडिंग टाइम। आपका टेक्निकल SEO आप फिक्स करना, ओके? कोई भी ब्रोकन पेजेस नहीं होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, और आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, जो पेज है, वो बहुत स्लोली लोड हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड रैंकिंग्स पे भी वो इम्पैक्ट करेगा और आप SGE में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। आई टोटली गेट इट दैट गूगल इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द वेबसाइट ओनर्स एज वेल एंड फॉर द पीपल who do SEO as well, but that should not stop us from experimenting things. We have to anyway display our website on Google, we have to anyway go with that, but let's not put all the eggs in one basket. That is my point. Do these things at least and make your personal branding game strong. अगर आप देखें तो गूगल के पास्ट जो लॉन्चेस थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। काफ़ी लॉन्चेस ऐसे थे, अगर आप यहाँ पे killedbygoogle.com पे जाके देखेंगे एंड यू कुड सी दैट गूगल ऑप्टिमाइज, ये सब सर्विसेज हैं गूगल की जो ट्राई की थी बट डिडंट वर्क आउट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप सर्च जनरेटिव रिजल्ट्स ऐसे ही हमें यहाँ देखने को ना मिले एंड आई होप इट वर्क्स। आई होप गूगल would take into notice कि क्या फीडबैक आ रहा है यूज़र्स का, बिकॉज पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आई एम नॉट लाइकिंग इट। ऑब्वियसली एक टूल की तरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है, बट पीपल हु डू इन डेप्थ रिसर्च एंड दे आर डूइंग इट एवरी डे, पीपल हु आर प्रोफेशनल कॉपी राइटर्स और कॉन्टेंट मार्केटर्स, दे नो इट्स गुड फॉर द सर्फेस लेवल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट फॉर द प्रोफेशनल्स।